Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter local governments, and under this chapter we were discussing the 73rd Amendment Act in the previous class, and in this 73rd Amendment Act, what were the major provisions which came into effect regarding these rural local bodies, which is called Panchayati Raj institutions. And in this regard, we have seen that this 73rd Amendment Act introduced the three-tier structure, in which there are three levels of Panchayati Raj institution. At the bottom level, Gram Panchayat is there. Then at the intermediary level, Panchayat Samitis are there, and at the apex level, Jila Panchayat or Jila Parishad is there. And we have also seen that Gram Sabha is compulsory in these local bodies. जो ग्राम पंचायत होते हैं उसमें ग्राम सभा को कंपल्सरी कर दिया गया है, because that is the actual participation of the people above the age of 18. People of the age of 18 or above the age of 18 are the member of the Gram Sabha. So it's a true democratic body, and that is why it has been given so much importance in the 73rd Amendment. And then we have also seen that there is provision for elections to the Panchayati Raj institution. The election should be direct. There should not be any kind of indirect election, and regular. And this provision is very important, because we have seen that during the after independence era, when this local government was not given a place in the constitution, we see that what happened, that there was irregularity regarding the election. Elections were highly irregular. In many states there were indirect elections were taking place. So in order to remove all those irregularity, this provision is made in the 73rd Amendment. And after this we see that there is also provision for reservation of seats. 1/3 of the seats is reserved for women, and this reservation of seat is not only for the ordinary seats, but the reservation is for the post also, like the post of chairperson, the post of sarpanch. These are also reserved. 1/3 of these posts are also reserved for the women. And other than women, there is provision of reservation for the scheduled caste and scheduled tribes. And the seats are reserved for these people belonging to scheduled caste and scheduled tribes according to their population. Whatever is their proportion in the population, the seat is reserved accordingly. And that is compulsory for SC/ST. And we have also seen that this reservation of women is in all the categories, in general categories, in SC categories, as well as in ST categories. And besides all these, there is also provision in the constitution, in this Amendment Act, that the seats can be reserved for other backward classes also, if the state government is of the opinion that they are not represented well in the institution. So it is not compulsory. It depends on the state government that if it wants to reserve the seat for OBC, if it is of the opinion that their representation is not proper, then the seat can be reserved for them also. And other than this, the next important element or provision of this Amendment Act was transfer of subjects. As we have seen that the main purpose of bringing this constitutional amendment was to make the local bodies powerful, and that is the reason it is given in the Article 243G that there are 29 subjects. 29 subjects are enlisted in Schedule 11th, and according to need, according to desire, we can say, the state government can transfer these 29 subjects to the local bodies. It is not compulsory for the state government to transfer all the 29 subjects. It depends on the state government how many subjects it want to transfer to the local bodies.
It can transfer all the 29 subjects. It can transfer 1 or 2 subjects or 10 subjects, anything. It depends on it is given completely. It is under the authority of the state government. Whatever it feels it can do. And the 29 subjects which are mentioned in schedule 11, all these subjects are related to welfare and developmental activities. Okay, because the main function of Panchayati Raj institution is community development, and that is why all these subjects are included in this 11th schedule. So all these we have discussed, and after that we have started this discussion that in our country we have a large population of tribal people, and the tribal people have a very distinct culture. Their culture is completely unique, first of all. And then second, the most important thing is that the tribal people are very much dependent on the natural surroundings. Whatever natural surroundings they have, they depend on that surrounding. So what we find that the tribal population are very much dependent on the common, we can say the common properties जिनको हम कहते हैं, common resources जिसको हम कहते हैं, like forest है, then small water reservoir है, जो कि common resources हैं. वो उन पे, इन common resources पे ये tribal populations जो होती हैं वो अपना control रखती है. ऐसा ही है क्योंकि वो बहुत पुराने समय से, from the very beginning, they are using these resources, and they are the owner, we can say. They are the manager. They don't want any kind of interference from the government in these matters. They want their own control, and that is why what is done by this constitutional amendment, it was not extended to some tribal areas in our country. We see that the provisions of 73rd amendment were not made applicable to some areas which are inhabited by the tribal population in many states of the country. And then this act was passed in 1992, and then it was implemented in 1993, and then we see that many areas were not under the control of this act, है ना. इस एक्ट से बाहर रखा गया बहुत सारे एरियाज को जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ पर रहती थी. इसके बाद फिर क्या हुआ कि 1996 में एक एक्ट पास किया गया. द ईयर 1996 वन एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. और ये जो एक्ट पास किया गया, इसमें क्या किया गया कि इसको पास करने का यही पर्पस था कि जो पंचायत सिस्टम के जो प्रोविजंस हैं, जो हमारे 73rd अमेंडमेंट से जो नए नए प्रोविजंस आए हैं, उसको कैसे एक्सटेंड करना है इन एरियाज तक. पूरी तरह से नहीं, पहले तो कहा गया कि उन एरियाज को पूरी तरह से अलग रखा जाएगा, लेकिन फिर 1996 में एक कानून बना करके ये प्रिस्क्राइब किया गया कि जो ट्राइबल इनहैबिटेड एरियाज हैं उन पर ये जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 93 का, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि जो नया एक्ट है वो इस तरह से बनाया गया है जिससे कि जो ये कम्युनिटीज़ हैं, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है ताकि दे शुड बी एबल टू मैनेज their resources in whatever way they want. There should not be any kind of interference from the local authorities in the managing of the resources by these tribal population. ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करते हुए ही ये एक्ट बना है कि उनके राइट्स जो हैं, they have the right to manage their resources and it should not be interfered with by the local bodies. ठीक है, और इसीलिए क्या किया गया है कि ये जो ट्राइबल एरियाज जिनको हम कह रहे हैं, वहाँ पर जो ग्राम सभा है ना,
those gram sabhas are given more power. I told you ना ग्राम सभा क्या होता है. ग्राम सभा is the body of all the adult villagers, है ना. जो भी adult villagers है वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. अब जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, these members of ग्राम सभा elect the members of ग्राम पंचायत. ठीक है. ग्राम सभा के मेंबर ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. और ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? दे आर द पंच. ठीक है. ग्राम सभा के जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर जिनको कि ग्राम सभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं, उन ग्राम पंचायत के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड पंच. ठीक है. ये जो पंच होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं. They are elected by the adult villagers who are the member of the ग्राम सभा. ठीक है. अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो अदर है, बाकी के जो एरियाज हैं उनमें क्या है कि पंच जो है ना, पंच सारे पंच होते हैं, उनमें से एक सरपंच होता है. सरपंच का भी इलेक्शन होता है. जो हेड होता है ना उसके लिए भी इलेक्शन होता है. You don't need to go in details because these are not under your syllabus. ये सब चीजें नहीं अभी आपको पढ़नी है कि कैसे इलेक्शन होता है, क्या होता है. बट यू मस्ट हैव एन आइडिया कि जो ग्राम सभा के मेंबर हैं वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. ग्राम पंचायत के मेंबर को हम पंच कहते हैं. और इन पंचों का एक सरपंच होता है और सरपंच के लिए भी अलग से इलेक्शन होते हैं. ठीक है. तो नॉर्मल जो अदर एरियाज हैं जो कि ट्राइबल एरियाज नहीं हैं, वहां पर क्या होता है कि जो पंचायत होती है ना वो दैट इज पावरफुल बॉडी. हमने कहा था ना कि ग्राम सभा जो होती है वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह होती है. जैसे पार्लियामेंट होते हैं स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे, जैसे पार्लियामेंट होती है, जस्ट लाइक दैट एट द लेवल ऑफ विलेज देयर इज ग्राम सभा. ठीक है. और जो ग्राम पंचायत होती है ना, इट एक्ट्स लाइक एग्जीक्यूटिव. जैसे कि हमारे सेंट्रल लेवल पे हमने सब पढ़ा हुआ है ना, सेंट्रल लेवल पे या यूनियन लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होती है वो कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट. दे ऑल फॉर्म द दिस एग्जीक्यूटिव. और वी ऑल नो कि एग्जीक्यूटिव इज वेरी मच पावरफुल एट द सेंट्रल लेवल. तो अगर लोकल लेवल पे भी हम देखें तो पंचायत जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं. ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं दे टेक डिसीजंस. हाँ, उन डिसीजंस का फिर उनको रखना पड़ता है ग्राम सभा के सामने, पास कराना होता है, तब वो इम्प्लीमेंट होता है. यहाँ पर क्या किया गया है, ये जिस ट्राइबल एरियाज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या किया गया है कि ग्राम सभा को ज्यादा पावर दिया गया है. क्यों ज्यादा पावर दिया गया है ग्राम सभा को? क्योंकि ग्राम सभा में सारे लोग मेंबर होते हैं, है ना. अगर ग्राम पंचायत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी तो कुछ जो थोड़े से जो इलेक्टेड पंच हैं, पंच और सरपंच है, वो मिलकर के कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं विच कैन बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी. तो इन ऑर्डर टू चेक the power of the panch and sarpanch, what is done in these areas, that the gram sabha is made more powerful, so that there should be control of the gram sabha, more control of the gram sabha over the gram panchayat. और कोई भी डिसीजन ग्राम पंचायत अपने से नहीं ले सकती है, उसमें उसको ग्राम सभा जो है उसका कंसेंट के बाद ही वो डिसीजन ले सकती है. ये दिस इज द वे अडॉप्टेड अंडर दिस एक्ट कि कैसे हम अपने कंट्री की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखें और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी करें. बोथ द थिंग्स आर गोइंग टुगेदर. On the one hand, diversity is maintained by making the Gram Sabha more powerful, by making it compulsory for the Gram Panchayat to take the consent of the Gram Sabha in order to take any decision. So in this way, decentralization is made possible. And on the other hand, the Gram Panchayat, the diversity has also maintained. कैसे diversity maintain हुआ? ग्राम सभा को पावर दे करके.
मतलब दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। एक तो आपने ये कर दिया कि वहां पर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट को वहां पर स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट को इस तरह से स्टैब्लिश किया गया कि ग्राम सभा को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया, ताकि कोई भी डिसीजन पूरी जो ट्राइबल विलेज है मेंबर्स हैं वो जब चाहेंगे तभी डिसीजन हो सकेगा। कुछ जिसको हम कह सकते हैं कुछ मुट्ठी भर लोग जो कि इलेक्टेड ही सही, बट इफ दे आर मेड ऑल पावरफुल तो वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, है ना, तो वो नहीं किया गया है। तो दिस इज हाउ डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज मेंटेन्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ये तो बाद में हमारा अमेंडमेंट हुआ। तो इस तरह से इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट से इसको दोनों को ही मेंटेन किया गया है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। अब ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या है, हम वी हैव रेड अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। एक हमारे पूरी कंट्री के जो इलेक्शंस होते हैं, जो लोकसभा का इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, वो सारे इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, वो सारे इलेक्शन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट कराता है, जिसके लिए देयर इज प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, है ना। तो अब हम एक नया बॉडी के बारे में जान रहे हैं, इट्स स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, एंड दिस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस विद इन द स्टेट. Within the state, whichever Panchayati Raj institutions are there, like Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Jila Panchayat, all the elections to all these bodies are conducted by the State Election Commissioner. And this State Election Commissioner is appointed by the state government. ठीक है? Before 73rd Amendment, we see that elections were there, elections होते थे। 73rd अमेंडमेंट के पहले भी इलेक्शंस होते थे लोकल बॉडीज के, दो इट वाज इरेगुलर, इन मेनी टाइम्स इट वाज इनडायरेक्ट, बट इलेक्शंस जब में तब होते रहते थे। तो उस समय जब 73rd अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो उस समय ये इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता था, ये इलेक्शन उस समय स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वही कंडक्ट करती थी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि हाँ, यू विल हैव टू कंडक्ट द पंचायती राज इलेक्शंस, जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, जो भी लोकल बॉडीज है, उनके इलेक्शन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही कराती थी। लेकिन अब क्या हुआ, आफ्टर दिस अमेंडमेंट ऑफ 1973 ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, और ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी जस्ट लाइक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हमने देखा ना कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है जो कि सेंट्रल लेवल पे है, जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडीज इन द वर्ल्ड। कोई भी इलेक्शन कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है डिफरेंट कंट्रीज में, उसमें हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल में आती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको बहुत ज्यादा पावर्स दिए। और इलेक्शन कमीशन का पावरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू मेक द डेमोक्रेसी रियल, इन order to conduct the elections in a free and fair manner. It is very much important that election commission must be given required power, required independence,
और हम लोगों ने देखा है हमारे इलेक्शन कमीशन में ये सारी चीजें प्रोविजन की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन द सिमिलर वे जब ये 73rd अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट एक्ट आया, तो इसमें भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो की बात की गई उसको एक ऑटोनॉमस ऑफिस कहा गया कि ये ऑटोनॉमस है। ठीक है, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होगा और उसका किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेशन नहीं है। इट इज नॉट वर्किंग अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये न तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही कंट्रोल में है और ये ऐसे नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल होता, बल्कि ये स्टेट गवर्नमेंट से भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, लोकल बॉडीज के इलेक्शन दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज द ट्रू डेमोक्रेसी, है ना। तो इलेक्शंस तो हर जब भी इलेक्शन हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इलेक्शन तभी हमारे लिए मीनिंगफुल है जबकि वो फ्री एंड फेयर है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है तो फिर ये बेकार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर बनाया गया है बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट, और वो किसी भी तरह से न तो इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है कि उसके सबऑर्डिनेशन में उसे काम करना है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में काम करना है। इट्स एन ऑटोनमस बॉडी। And now we come to the next point, and that is State Finance Commission. So now it's State Finance Commission. Okay, इसको हम कहते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसके लिए भी हमारे अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजन किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करेगी हर 5 years पे। वंस इन 5 years इट विल अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन। ओके, अब ये फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, इस स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या फंक्शन है। दिस कमीशन वुड एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, है ना, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बिकॉज वी नो दैट they may be given local governments may be given so many powers, है ना, by the amendment। बहुत सारे powers दे दिए गए, but it will not be able to use its power in the absence of fund. Funds are very important. Actually that is the real power. अगर हमें फंड ही नहीं मिलेगा and only we will be given only functions to do without any fund, then that function cannot be performed. So everything will become meaningless in the absence of funds. तो funds जो होते हैं उनकी financial position क्या है, what is their financial position, ये इसको वो assess करते हैं। कौन? ये स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये उसके कंडीशन को assess करते हैं और ये देखते हैं कि जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती है उसको लोकल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर जो लोकल के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ उसमें से क्या होता है, कुछ रूरल को जाता है, कुछ अर्बन को जाता है। इसको मैसेज समझ सकते हैं जैसे कि जो भी फंड आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो अपने फंड को कुछ तो अपने पास रख लिया उसने और कुछ दे दिया उसने लोकल गवर्नमेंट को, है ना। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसमें भी 2 पार्ट होंगे, एक जाएगा अर्बन को और दूसरा जाएगा रूरल को। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस पर भी वो वॉच करते हैं, रिव्यू करते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को उतना जितनी रिक्वायरमेंट है लोकल गवर्नमेंट को फंड्स की उतना फंड उनको दिया जा रहा है या नहीं। ठीक है, और इस तरह से रूरल लोकल बॉडीज को ये एक एफर्ट है फ्रॉम दिस अमेंडमेंट एक्ट। इट इज एन एफर्ट टू कीप दिस एलोकेशन ऑफ फंड्स आउट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत पॉलिटिक्स होता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने फेडरलिज्म
नहीं पढ़ना है अब आपको, बट हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है कि जब सेंटर और स्टेट के रिलेशन में भी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो फंड की ही आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस तरह के प्रोविजंस किए गए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज बहुत कम है और उनको असिस्ट ही लेना पड़ता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना पड़ता है, एड लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो अगर हम फंड के लिए हर समय हमें हाथ फैलाना पड़ेगा तो फिर हमारे इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमारे फेडरलिज्म की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो यही चीज, और इसमें हमने आई हैव टोल्ड यू कि इसमें कितना पॉलिटिक्स होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसी पार्टी की है जिस पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट है तो फिर तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने में प्रॉब्लम नहीं आती है, वो जितना डिमांड करते हैं मोस्टली मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। बट if the government at the center is of different party and the government at the state is of different party, especially if the opposition parties are in power in the center and in the state, then the condition becomes highly controversial and political. वैसे में वो फंड की डिमांड करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, बट दैट देयर डिमांड विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें बहुत पॉलिटिक्स होता है। तो द सेम पॉलिटिक्स यहाँ पर फिर होता है। सो रूरल लोकल बॉडीज का भी जो इलेक्शन होता है उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है, और इसमें भी जब फंड्स का एलोकेशन होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को फंड देती है तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाता है और ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो इसलिए ये काम दे दिया गया किसको, ये काम दे दिया गया स्टेट फाइनेंस कमीशन को। फाइनेंस कमीशन जो है उसको ये देखना है कि जो कुछ भी कंडीशन इनकी क्या है लोकल गवर्नमेंट की, यहाँ पर ये इट इज एक तो उनकी लोकल गवर्नमेंट की कंडीशन क्या है, और जो ट्रांसफर दे रही है, जो पैसे वो दे रही है स्टेट गवर्नमेंट उतना सफिशिएंट है या नहीं है, कितना देना चाहिए, इन सब बारे में जो डिसीजन लेती है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन ही लेती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी अच्छे प्रोविजंस कहे जाएंगे कि इनसे यही एफर्ट किया गया है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए। और हम लोग इसके बाद एट प्रेजेंट तो वी विल डिस्कस 74th अमेंडमेंट, बट इसमें हमें ये भी देखना है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि चीज़ें जो एक लॉ बन जाता है, बट लॉ मेकिंग इज नॉट एवरीथिंग। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज द इम्प्लीमेंटेशन। हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस 74th अमेंडमेंट, बिकॉज हमें दोनों ही अमेंडमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और 74th अमेंडमेंट, एज यू ऑल नो, इट डील्स विथ द अर्बन लोकल बॉडीज, या फिर जिसको हम नगर पालिका भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडीज को ये डिस्कस करती है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि अर्बन एरिया से हम क्या समझते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय अर्बन एरिया। अब इसमें क्या होता है कि कुछ तो बहुत बड़े हमारे सिटीज़ हैं जिनको हम मेट्रोपॉलिटन्स कहते हैं, लाइक मुंबई है, कोलकाता है, ये तो बहुत बड़ी सिटीज़ हैं जिनको कोई भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन किसी स्मॉल अर्बन एरियाज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है कि वो किस में आता है, वो विलेज में आता है, टाउन में आता है, उसकी कैटेगरी क्या है अर्बन एरिया की। उसमें हमें काफ़ी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो प्रॉब्लमेटिक होती है। वो कहना आसान नहीं होता है कि कोई जो बहुत स्मॉल अर्बन एरिया है वो किसको बिलोंग करता है। तो इसमें क्या हुआ है कि हमारे जो सेंसस होते हैं, जो कि पॉपुलेशन का कि जिसमें काउंटिंग होती है, तो सेंसस जो हुआ है उसमें अर्बन एरिया को किस तरह से डिफाइन किया गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ आवर कंट्री, अर्बन एरिया इज डिफाइंड इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट इज that there should be a minimum population of 5,000.
अर्बन एरिया होने के लिए जो पहली क्राइटेरिया हम देख रहे हैं वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग 74th अमेंडमेंट. और इसमें हम वी आर कंसर्न विद अर्बन एरियाज एंड द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज how to identify an urban areas. And in the census of our country, it is said that an area will be considered urban if its population is 5,000. First is population of 5,000. Okay. Now the second thing. The second important criteria is that at least 75% of male working population engaged in non-agricultural occupation. In order to be an urban area, it is compulsory that 75% of male working population, male working population should be engaged in non-agricultural activity. ठीक है? ओके, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. और एक और क्राइटेरिया है, द थर्ड क्राइटेरिया इज की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है? डेंसिटी जो है वो कम से कम 400 पर्सन्स पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए. ठीक है, तो डेंसिटी शुड बी एटलीस्ट 400 persons पर स्क्वायर किलोमीटर. पर स्क्वायर किलोमीटर कम से कम जो है वो हमारे 400 पर्सन होने चाहिए. ये डेंसिटी का क्राइटेरिया है. अगर ये तीनों क्राइटेरिया कोई भी एरिया फुलफिल करता है तभी हम उसको अर्बन एरिया मानेंगे. So we will continue our discussion regarding this 74th Amendment Act in the next class.